Good morning, student of class 3, and I will start your 5th chapter remaining matter. Okay, and previous video I have taught you what is the physical feature. Okay, and how many physical feature of India? So there are 6 physical feature of India. Okay, the northern mountain, the northern plains, the great Indian desert, the southern plateau, the coastal plain, and the island region. ओके आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं. ओके, व्हाट इज माउंटेन? माउंटेन आर हाई प्लेस ऑफ लैंड. माउंटेन आर हाई प्लेस ऑफ लैंड. ओके, Himalaya mountain range is the highest mountain range of India, and it is in northern part of our country. The highest mountain peak is the Mount Everest, located in Nepal. Okay, and then Himalaya mountain peak in Mount Kanchenjunga MK2. This mountain are source of many of Indian rivers like Ganga, Yamuna, Brahmaputra, etc. Darjeeling and Simla are hill station of in Himalaya range. There are more mountain range in India like that Vindhya range, Satpura range, Nilgiri hills. Okay, and next one is plains. Different parts of our country have flat and level land. These are called plains. The great plains lie in the south of Himalaya. Many rivers like Ganga and Yamuna flow in these regions. The great plains form the largest alluvial soil in world. It is a very fertile. Farmers grow crops like rice, wheat, corn and sugarcane in these plains. Then after that, the great Indian desert. Desert is dry and barren land. Desert is dry and barren land. The great Indian desert called Thar desert, and it is located in the west part of India, and it is in Rajasthan. It is in Rajasthan. Okay, the land is dry, barren and sandy. In a desert, it is very hot during the day. The reason is dry and hot. It receives very little rainfall. This place receives very little rainfall. Only plants like cactus and caker grow here. Camel is used to carry things and peoples one place to another place, and it is called the sheep of desert. Okay, and next one is plateau, the part of the land that is little higher than the surrounding parts, but it is a flat surface, is called plateau. Okay, the Deccan Plateau form of South India. It has many hills. Most of its part have rocky land. And next one is island. Island is small land are surrounded by water on all sides. The two island group are located our country, Lakshadweep and Andaman and Nicobar. In India, the land is dry in some place, high in other places, flat in other places, and rocky in others. The climate is different from place to place. The climate is hot and dry in desert. It is bitterly cold on the mountains. It is hot in summer and cold in winter in the plains. It is humid in coastal areas. Okay, तो ये था आपका 5th chapter, the India and its physical features. आइए हम आपके शब्दों में कुछ समझा देते हैं, ठीक ना? तो माउंटेन्स क्या है? माउंटेन्स है वैसा जगह जो क्या है, प्लेन्स एरिया से ऊंचा होता है, ठीक है. और यहाँ का जो क्लाइमेट्स होता है वो क्लाइमेट्स क्या होता है, कूल होता है दैन लैंड सरफेस. जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं हमारा जो क्लाइमेट्स है और माउंटेन का क्लाइमेट हमसे क्या होगा, कूलर होगा, ठीक है. यानी कि हम जहाँ पे रहते हैं और जब हम जाते हैं हिल्स स्टेशंस पे तो वहाँ का क्या होगा, क्लाइमेट्स यहाँ से प्लेजेंट होगा, ठीक है. उसके बाद आइए प्लेन्स. प्लेन्स किसको कहते हैं? वैसा सरफेस जो फ्लैट होता है, वैसा सरफेस जो फ्लैट होता है. जैसे जहाँ हम रह रहे हैं, हम प्लेन्स एरिया में रहते हैं. हम कहाँ रहते हैं? हम प्लेन्स एरिया में रहते हैं. तो ज़्यादातर फार्मिंग ऐसे ही एरियाज़ में की जाती है, ठीक है, क्योंकि फार्मिंग के लिए ये जो प्लेस है वो बहुत सुटेबल है. और यहाँ पर जो है, यहाँ एलुवियल सॉइल पाया जाता है जो कि काफ़ी फर्टाइल होता है, और इट इज़ अ वेरी गुड फॉर क्रॉप्स. ये फसल के लिए बहुत अच्छा होता है. और यहाँ पे राइस, वेट, मैजी, कॉर्न, ओके, ये सारी फसलों का ग्रोन होता है. ओके, नेक्स्ट वन
द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, डिजर्ट मीन्स क्या होता है, मरुस्थल, ऐसा जगह जो क्या होता है कि काफ़ी सूखा होता है और यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो सैंडी होती है, यानी कि बलुई, यानी कि बालू, ठीक है। यहाँ पे आप जैसा मिट्टी हमारे यहाँ पाया जाता है वैसी मिट्टी डिजर्ट एरिया में नहीं पाई जाती है। वहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पे सैंडी सॉइल पाया जाता है, जहाँ जिस पर कि फार्मिंग क्या है, जिस पर फार्मिंग करना इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड फार्मिंग नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है। और यहाँ पर लिटिल रेनफॉल होता है, कहने का मतलब कि बारिश बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो ऐसे भी यहाँ जब बारिश कम मात्रा में होगी तो फसलों का क्या होगा, फसलों का उत्पादन वैसे भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे स्पेशली मेन दो तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं, वो क्या है, वो है कैक्टस और केकर, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज प्लेट्यू। तो वैसा लैंड क्या कहता है, द पार्ट ऑफ द लैंड दैट इज लिटिल हायर देन द सराउंडिंग पार्ट्स बट इट हैज़ अ फ्लैट सरफेस। कहता है कि वैसा जगह जो कि हमारा जो फ्लैट लैंड है उससे थोड़ा सा ऊंचा रहता है, लेकिन वहाँ का जो जगह होगा वो क्या होगा, वो भी फ्लैट ही होगा। मतलब हमारे सरफेस से वो सरफेस थोड़ा ऊंचा होगा, लेकिन क्या होगा, समतल ही होगा, ओके। तो वैसे जगह को हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं, यानी कि प्रायद्वीप, ओके। एंड नेक्स्ट इज आइलैंड, इट इज स्मॉल लैंड एरिया सराउंडेड बाय वाटर इन ऑल साइड, ऐसा जगह जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो वैसे जगह को हम क्या कहते हैं, आइलैंड। मतलब जब आप आइलैंड में जाएंगे ना, तो आप जो मतलब वो प्लेस है उसके चारों ओर पानी ही पानी होगा, ठीक है। यानी कि आपको वहाँ जाने के लिए एज अ वाटर ट्रांसपोर्ट या एज अ एयर ट्रांसपोर्ट का ही क्या लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा, और आप उसी के हेल्प से वहाँ पर जा सकते हो। तो यही था आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ओके। एंड योर चैप्टर हैज़ फिनिश। और इसमें एक बात और है, यहाँ कहता है कि हमारा जो हमारी जो पृथ्वी है और हमारा जो इंडिया है, इसमें क्या है, इसमें हर जगह हर तरह का सरफेस पाया जाता है, कहीं ऊंचा, कहीं समतल, कहीं मतलब क्या थोड़ा ऊंचा, कहीं ज़्यादा ऊंचा, और उसी तरह से यहाँ का क्लाइमेट्स भी होता है, ओके। तो माउंटेन्स का क्लाइमेट क्या होता है, माउंटेन्स का क्लाइमेट काफ़ी कूलर होता है, जबकि डिज़र्ट एरिया का क्लाइमेट क्या होता है, हॉट होता है। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट क्या है, एक्सट्रीम ही है, यानी मॉडरेट भी है, ओके, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, ओके।